Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Taurus Ascendant and how the month of March 23 is going to turn out for you. So we will first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord is going to pass through the 11th house till 11th of March, and after this it will be placed in the 12th house from 12th of March to 5th of April. Now both the placements are extremely good, especially the placement of Venus in the 12th house. Here it is going to combine with Rahu. Now this has both positive as well as negative aspects. The positive aspect would mean that you can earn money from foreign areas, or if you are planning to go to a foreign country or tie up with someone who is in a foreign place like a foreign entity, then this will be a very good time to do that. Also, this indicates income from unknown sources. Now on the flip side, this kind of a combination creates extramarital affairs. You will end up taking incorrect decisions or spending large amount of money on luxury items. See, Taurus ascendant people enjoy life more than any other ascendant, and since Venus is their ascendant lord, they also end up over enjoying, celebrating in excess of their capacity. So when they drink, they do much more than their capacity. When they spend, they end up spending money more than what they earn, and as a result, they have to face severe repercussions later because of these actions. Once the Venus moves into your 12th house, which is from 12th of March to 5th of April, you have to be extra cautious when you are dealing with opposite gender because they may try to trap you during this time frame. And since Venus is also the lord of service, so people who are in MNC will get benefited in the second half of March. But for the rest of the people, this second half time frame will be that of struggle. The best time frame for people who are engaged in service or jobs will be in the first half of March, especially from 7th and 8th of March. Now Sun is going to transition through your 10th house till 14th of March, where Saturn is also placed. So, and Sun indicates people who are your bosses or people who sits in the upper level of hierarchies. So you should avoid arguments with them or with your immediate line manager till 14th of March. And after Sun moves to the 11th of house on 15th of March, you will see a reduction in confrontation in your workplace. Now Mars is also going to move to your second house of self-earned wealth, family and speech on 13th of March, and it will stay here till 4th of May. So Mars provides aggression. Whatever house it passes through introduces a feeling of aggression in it. Its placement in the second house would mean that it will introduce aggression in your speech, and you should avoid arguments with your family or at least think a lot before you speak because your aggressive approach will backfire on you, and your family members may also feel a bit antagonized because of the way you are going to speak. So just be cautious when you are talking and think before you speak, especially in the time frame from 13th of March to 4th of May. Now Jupiter is going to create opportunity to get married and plan for kids till the end of the month because Jupiter will be aspecting both the fifth house as well as seventh house, and after the end of March it will leave this position. So till March you still have an opportunity to get married as well as plan for a progeny. Now Mercury is going to be in the 10th house till 15th of March, and after this it is going to move to the 11th house where it is going to stay till the end of the month. Now Mercury is the owner of both second as well as fifth house, and both the houses are related to money. So people who are involved in speculation will have an excellent time in March, especially in the second half, because once Mercury moves here in the 11th house from 16th of March, it is going to aspect its own house. So the best time for engaging in speculation will be in different phases. The first phase will be from 9th to 11th of March. The second will be from 18th to 20th of March, and third will be from 26th to 28th of March. Since Mercury is also the owner of the second house, which showcases self-earned wealth, so the best time frame for cash flow will be on 18th and 19th of March. Now, generally, Taurus ascendant people have more than one source of income due to the dual sign of Gemini in the second house. And if Mercury is very strong in the horoscope, then it also makes you rich through speculation because of its ownership of the fifth house as well as money that you inherit from your family. Taurus ascendant people invest in the stocks that are related to media, finance,
software and FMCG products, then it usually turns out to be very beneficial for you. In March also, if you invest in IT companies or in FMCG and hold them for long term, it may prove to be very beneficial for you. But to do all of this, you need to have an inherent understanding of the stock market. Pure gambling is not going to work. Now, there are also certain dates when you need to be cautious and avoid taking any key decisions. So, these dates for you in the month of March are 1st, 2nd, and 3rd of March, 12th, 13th, and 14th of March, and 29th, 30th, and 31st of March. Just be cautious and avoid taking any key decisions during these days. Overall, if you look at the month of March, the second half is going to be very beneficial for you on your professional front as well as in terms of earning money through speculation. So that's the summary for you for this month. Please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृषभ लग्न वालों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, हम लोग लग्नेश से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लग्नेश को हम जब देखते हैं तो ये 11 मार्च तक आपके 11वें भाव में बैठे रहेंगे और इसके बाद शुक्र 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक 12वें भाव में बैठे रहेंगे। तो दोनों प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। लग्नेश का 11वें भाव में भ्रमण अच्छा कहलाता है और लग्नेश का 12वां भाव में जाना यूजुअली तो अच्छा नहीं कहलाता, लेकिन ये शुक्र है और शुक्र का प्लेसमेंट 12वें भाव में जनरली अच्छा ही होता है। यहाँ पर शुक्र राहु के साथ कंबाइन करेगा 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में, और राहु अनजान चीज़ों को दिखाता है, फॉरेन चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पे आपको जब आप राहु के साथ शुक्र कंबाइन करता है तो अर्निंग्स आपको फॉरेन से होंगी। अगर आप फॉरेन की किसी एंटिटी के साथ कोई टाई अप करना चाहते हैं कंपनी वगैरह के साथ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा ऐसा करने के लिए। इसके अलावा अगर आप एमएनसी में एम्प्लॉयड हैं तो भी ये समय आपके लिए फिर अच्छा साबित होगा। ये आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं शुक्र के राहु के साथ कंबाइन होने की वजह से। अब जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस तरह का जो प्लेसमेंट होता है उससे व्यक्ति के विवाह के बाहर संबंध बनते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोलते हैं। इसके अलावा क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में जा रहे हैं तो व्यक्ति कई बार गलत निर्णय ले बैठता है और काफी ज्यादा पैसे का भी नाश करता है इस तरह का प्लेसमेंट। वैसे भी देखिए, वृषभ लग्न के लोग हमेशा मौज मस्ती वाली जीवन जीना चाहते हैं और ये पैसा भी काफी उड़ाते हैं, और इनफैक्ट कोई भी अगर मौज मस्ती करनी हो तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करते हैं। शराब पिएंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा पिएंगे, अगर पैसा खर्च करेंगे तो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से इनको बाद में काफ़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी किसी उल्टे जेंडर के साथ डील कर रहे हैं, मेल है तो फीमेल्स के साथ, फीमेल है तो मेल्स के साथ, तो ये सेकेंड हाफ में मार्च में खास करके 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक के समय में बहुत सावधानी से डील कीजिए इन लोगों के साथ। नहीं तो फिर ये लोग आपके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे इसी टाइम फ्रेम में। इसके अलावा आप अगर देखें तो शुक्र आपके 6वें भाव का भी स्वामी बनता है जो कि सर्विस का स्थान है। तो फिर से अगर आप एमएनसीज में काम करते हैं तब तो ये समय आपके लिए अच्छा है, नहीं तो सेकेंड हाफ मार्च का आपके लिए थोड़ा कठिनाई भरा साबित होगा। फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च जब तक लग्नेश 11वें भाव में बैठे हैं तब तक सही समय है और इस समय में आप जॉब में अच्छा भी करेंगे। जो अच्छी डेट्स हैं इसके लिए वो है 7 और 8 मार्च, अगर आप जॉब में अच्छा करना चाहते हैं तो। अभी सूर्य आपके दशम भाव में बैठे रहेंगे 14 मार्च तक, जहां पर शनि भी प्लेस्ड है। तो सूर्य आपके बॉसेस को दिखाता है, आपके सुपीरियर्स को दिखाता है, और जो इमीडिएट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनको भी दिखाता है। तो भी आपके सर पे बैठे होते हैं उनको। और अगर आप देखेंगे तो ये दशम भाव भी जो होता है जब आप पैदा होते हैं तो ये आपके सर के ऊपर आई हुई राशि रहती है। ये जो 10th हाउस की राशि है आपके सर के ऊपर आती है। तो इसीलिए इस समय में 14 मार्च तक अगर आप अपने बॉसेस वगैरह के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो फिर ये आपके लिए बैकफायर करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद जब सूर्य 11वें भाव में चला जाएगा 15 मार्च को, तो आपको अपनी काफ़ी दिक्कतें ईज आउट हो जाएंगी कार्यस्थल पे, खास करके जहाँ पे आप लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझते हैं वो आपके लिए एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। मंगल भी आपके द्वितीय भाव में मूव कर जाएंगे 13 मार्च से, और यहाँ पे जब भी मंगल किसी भी भाव में जाता है तो उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में वो अग्रेशन लाने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको अपनी वाणी पे संयम बना के रखना पड़ेगा। 13 मार्च से लेके 4 मई के बीच में
अगर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या आपके बोलने में ही एक तीखापन आ जाएगा, तो आपके परिवार के लोग भी इसकी वजह से हर्ट हो सकते हैं। और अगर आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर ये आपके ऊपर बैकफायर करेगा। तो जब भी कभी आप किसी के साथ बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप क्या बोल रहे हैं और सोच समझ के ही बात कीजिएगा। गुरु आपके 11वें भाव से भ्रमण करते रहेंगे मार्च के एंड तक, और यहाँ से ये अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को, 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखते रहेंगे। तो जितने भी लोग सिंगल हैं उनके लिए ये गोचर में गुरु हरी झंडी दिखा रहा है शादी करने के लिए 30 मार्च तक। और अगर आप कोई भी चाइल्ड प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 30 मार्च तक का समय बहुत अच्छा समय है। एक नज़र बुध पे भी डालते हैं। देखिए, बुध द्वितीयेश और पंचमेश दोनों ही हैं और बहुत आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। और यहाँ पे 10th हाउस में ही बैठे रहेंगे वो 15 मार्च तक। और इसके बाद वो 11वें भाव में चले जाएंगे जहाँ पे वो महीने के आखिर तक बैठे रहेंगे। तो मरकरी चूंकि द्वितीय और पंचम दोनों भावों का स्वामी है और दोनों ही भावों का संबंध पैसे से आता है, तो अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा है। खास करके सेकेंड हाफ में जब बुध यहाँ चला जाएगा और यहाँ से वो अपने ही भाव को देखेगा, तो ये समय सबसे अच्छा रहेगा शेयर मार्केट में या स्पेक्यूलेशन में पैसा बनाने की दृष्टि से। तो सबसे अच्छा समय है मार्च में, वो है 9 और 11 मार्च, 18 से 20 मार्च और फिर 26 और 28 मार्च। तो 3 अलग अलग फेजेस में आपको शेयर मार्केट से पैसा बनाने का अच्छा योग बन रहा है इस महीने में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी 26 से 28 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सक्सेस सकते हैं इस समय में। अभी मरकरी चूंकि आपके द्वितीय भाव का भी स्वामी है, द्वितीयेश का 11वें भाव से जाना एक बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। तो आपके लिए जो कैश फ्लो के हिसाब से सबसे अच्छा दिन है वो है 18 और 19 मार्च। वैसे तो पूरा सेकेंड हाफ ही आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे निकलेंगे। देखिए, आपके जो द्वितीय भाव में बुध की राशि पड़ती है मिथुन राशि, और अगर बुध आपकी कुंडली में बहुत मजबूत होता है तो आपको फैमिली से भी धन कमाने को मिलता है, आपको अपने एफर्ट से भी पैसा मिलता है और आपको स्पेक्यूलेशन से भी पैसा मिलता है। तो अगर आपका वृषभ लग्न है और बुध आपका बलवान है तो ये आपके लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारा पैसा लाके देने का काम करता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में संबंध रखते हैं तो आप मीडिया, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर एफएमसीजी कंपनीज में अगर लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो ये फिर आपको काफ़ी पैसा बना के देता है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग बुध का जो प्लेसमेंट है, अभी भी आप गोचर में भी देखिए तो द्वितीय देश का 11वें भाव में जाना और अपने पंचम भाव को देखना, यानी हाउसेस देखिए तीनों ही 2, 5 और 11 सब कवर हो रहे हैं, जो पैसा लाने की दृष्टि से एकदम उत्तम समय है। तो इन कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा पैसा बनता है। और आप स्टॉक मार्केट में अगर रुचि है तो आपको ज़रूर इसमें सीखने का काम करना चाहिए, क्योंकि आपके लग्न के लिए तो स्पेकुलेशन से पैसे बनाने का योग एक तरह से कुंडली में ही होता है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी आपको महीने में कुछ ऐसे दिन हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए और इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना चाहिए। तो ये मार्च के महीने में जो दिन है वो है 1, 2 और 3 मार्च, 12, 13 और 14 मार्च और 29, 30 और 31 मार्च। इन 9 दिनों में कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेना आप टालिए। आप अगर ओवरऑल देखिए तो काफ़ी अच्छा समय आपके लिए है, क्योंकि लग्नेश का 11वें भाव में जाना और उसके बाद 12वें भाव में भी मूव करना, ये शुक्र के प्लेसमेंट के लिहाज से तो बहुत अच्छा है ही। इसके अलावा कार्यस्थल पे भी खास करके सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में आप ना सिर्फ अपने जॉब में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा स्पेकुलेशन से भी पैसा बना सकते हैं। ये आपकी समरी है मार्च के महीने के लिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।